I welcome you all, dear students, today to my class in the paper of Understanding of Discipline, Unit 3. We shall be studying today about the various aspects based on interdisciplinary curriculum as well as multidisciplinary curriculum. Now, these two aspects that we'll be studying, first of all, we'll make it clear what interdisciplinary approach is and what multidisciplinary approach is. We shall be studying the merits, the demerits, which kind of approach is more, you can say, fruitful, more effortless, and in which cases, see, it is not, ऐसा नहीं होता है कि आप सोचें कि एक particular approach बहुत अच्छी होती है और दूसरी नहीं होती है. It is simply that which is more appropriate in which circumstances. तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी पाठ्यचर्या जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो कौन सी की महत्ता ज्यादा है किस केस में. सो वी शैल बी स्टडीइंग अबाउट दैट अप्रोच. Now, regarding the aspects, I wanted to discuss with you also कि ये interdisciplinary approach जिसमें आप दो किसी भी प्रकार के विषयों को जब लेते हैं, उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसके द्वारा उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं. लेकिन जब हम दो से अधिक विषयों को लेते हैं, अनुशासन को लेते हैं, उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हमारा उपयोग होता है. अब अगर हमारे कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें कि ज्यादा फ्रूटफुलनेस नजर आती है, अगर स्टूडेंट्स गेट मोर इंटरेस्टेड इन इट, सो नेचुरली इट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. बट इन सर्टेन केसेस यू कैन लिंक मोर देन 2 subjects, which is again would be a very fruitful way of making the student teaching learning process a better one. So while coming on that, let me first begin with a small slide share which I have prepared for you. There are various aspects of interdisciplinary and we'll be classifying them together to bring forth this approach. The interdisciplinary and the multidisciplinary approach of teaching and learning, it is a process of two-way process where naturally the teaching as well as the learning takes place. So what happens when we discuss about the interdisciplinary teaching and learning as the meaning of interdisciplinary teaching and learning? According to Heidi Jacobs, he has defined interdisciplinary learning as a knowledge view and curriculum approach that consciously applies methodology and language from more than one discipline to examine a central theme, issue, problem, टॉपिक और एक्सपीरियंस. जब हम किसी भी प्रकार से, चाहे वो सेंट्रल थीम हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो, कोई प्रॉब्लम एरिया हो, कोई इशू हो, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई अनुभव हो, कोई भी चीज है, उसके पर्टेनिंग जब हम डिस्कस करते हैं तो उसको कहते हैं कि इट इज रिलेटिंग टू यदि हम दो को ले रहे हैं तो वो इंटरडिसिप्लिन. जैसे कि आप सब जानते हैं इंटर स्कूल मैचेस होते हैं, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होती हैं. सो इट इज रिलेटिंग टू कोई भी दो विषयों में, दो सेंट्रल थीम्स में, दो इश्यूज में, दो जो प्रॉब्लम्स हैं टारगेट करते हैं, दो टॉपिक्स होते हैं, दो अनुभव होते हैं, उनके बीच का जो डिस्कशन है, इट इज रिलेटिंग टू दैट विच इज नोन एज अ नॉलेज व्यू एंड इट इज अ करिकुलम अप्रोच. और जब हम इसको डिस्कस करते हैं, वी जस्ट टॉक अबाउट इट इज इन रिलेशन इन टर्म्स, इन टर्मिनोलॉजी ऑफ जस्ट इन टर्म्स एज वेल ऑफ different, you can say, aspects. Now, ये इसके लिए हम एक जिस चीज की बात करते हैं, that is in pertaining not only to the subject area but also to the, ये आप केवल विषयों की या करिकुलम की बात नहीं करते हैं. You just talk in terms of, you can say, areas relating to different aspects of करिकुलम, चाहे वो दो विषयों से है, चाहे दो प्रॉब्लम्स में है, चाहे दो इश्यूज में है. ये ऐसा हाइडी जैकॉब्स ने कहा था. तो हमारे लिए ये सिंपली बात है कि इट इज वी आर रिलेटिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स. मगर कई जगहों पे आप ये पाएंगे कि जब दो से भिन्न हो जाएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे इन रिलेशन टू मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. लेकिन एक डिसिप्लिन और आई थी जिसमें कि द रिलेशन हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन वेरियस एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू, you can say, something like when Keith Bartolin has talked about Smith, he has suggested that interdisciplinary teaching learning is especially important
and in the stages you can say to provide authentic experience in more than one content area and offering a range of learning experience for students. तो इसको जब उन्होंने ग्रेड्स को ऑथेंटिक एक्सपीरियंस की बात करी है, इन्होंने बात करी है कि किस प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं रिलेटिंग टू द एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट एरिया। जो बहुत सारे कंटेंट एरिया ऐसे होते हैं जिसमें हम ऑफर करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस या ऐसा अनुभव। करिकुलम तो एक तरह से आप एहसास कह सकते हैं जिसमें आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर आप बना सकते हैं करिकुलम प्रोविजन को। सो व्हाट वी डू इज we try to simply make it more simply a part where this thing it is relating to different aspects. So we find that Keith Bartow and Lynn Smith have suggested that this interdisciplinary learning is especially important in the early grades. और जब छोटे होते हैं स्टूडेंट्स तो उनके साथ में ये जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस की बात, अनुभव की बात करी गई है, दैट इज सिंपली विद रिलेशन टू कीपिंग इन माइंड दे यू कैन से किस प्रकार से वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर लर्निंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ दे हैव टॉक्ड अबाउट. सो जब हम इंटरडिसिप्लिनरी की अप्रोच की बात करेंगे, when we talk about it, so it simply will mean that this learning teaching disciplinary pieces regarding the learning process of answering a question, of solving various aspects. You can say it will be addressing a topic that is too broad or complex. जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज या कोई टॉपिक ऐसा होता है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी सिंपल नहीं होती है, तो जब हम उसको दो चीजों में लिंक कर देते हैं, जैसे दो विषयों को लिंक कर देते हैं, सपोजिंग इफ यू हैव अ मैथमेटिकल मे बी थ्योरम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, सो इफ यू लिंक इट विद द थ्योरम एज वेल एज द geometrical aspect, you will find it become much more easier and simpler. कभी कभी क्या होता है algebraic equation के साथ आप लिंक करते हैं, कभी आप इंग्लिश ग्रामर में बात करते हैं, so in that the conjunctions and prepositions can be talked together by linking them together. जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंट्स में, तो बैलेंस शीट के साथ साथ में जब आप उसका अकाउंट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं और उसको आप बताना चाहते हैं पर्टेनिंग टू डिफरेंट वेरियस अकाउंट्स, कि वो सस्पेंस अकाउंट में क्या जाएगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा, तो आप जर्नल एंट्रीज के साथ साथ में लेकर बैलेंस शीट को बता सकते हैं. सो दैट इज इन रिलेशन टू वन विद द अदर. जब दो के बीच में एक संबंध की तरह से स्थापित किया जाएगा, तब आप कहेंगे कि इट इज लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम या एड्रेसिंग अ टॉपिक दैट इज टू ब्रॉड, में भी बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है समझने में, या सिंगल डिसिप्लिन के साथ में जो समझाने में प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. तो जब एक विषय को दूसरे विषय के साथ, या एक विषय के एक टॉपिक को उसी विषय के दूसरे टॉपिक के साथ, या उसके गोल को समझने के लिए, या उसकी इनसाइट को समझने के लिए, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग जो कंसेप्ट को लेकर होती है और उसमें हम वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, लिंक करते हैं, उसी नॉलेज को हम दूसरी नॉलेज से जोड़ते हैं, तो उसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती है. एंड दैट इज in relation to the understanding level of various aspects. तो ये जो comprehensive level है, ये जो understanding level है जिसकी हम बात कर रहे हैं, it is relating to different aspects. Now we will also talk about here different points as to how these two distinct approaches can be interdisciplinary. इनको हम कैसे interdisciplinary के तहत हम इसको लेंगे, कैसे हम उसको समझाएंगे, we will deal with that. And that is in pertaining to different ideas, different processes. वो हम जब उसके संपर्क में आते हैं तो हमारी सोच और हमारे aspects बदल जाते हैं. So we will talk about different aspects and deal with them. For example, जब हम कहते हैं कि एक इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच जो है वो कंसिडर करती है एक ऐसे प्रोसेस को by which ideas, information, methods, tools
और या दूसरे भिन्न प्रकार जो अनुशासन होते हैं, तरीके होते हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं। मतलब उसको इतना स्मूथली ब्लेंड करना होता है, इतना अच्छे से ब्लेंड करना होता है, सिंथेसाइज करना होता है कि वो फ्लो बहुत स्मूथ होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि टू very distinct things are intermerged, are merged together, so that the interdisciplinary part proves to be fatal. आप जब तक दोनों विषय, सपोजिंग आप आर्ट एंड म्यूजिक को कर रहे हैं, इट माइट बी लिंक्ड अप वेरी वेल, म्यूजिक के साथ में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एस्पेक्ट उसको आप लिंक कर सकें. सो पोएट्री कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू म्यूजिक, पोएट्री कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू डांस, पोएट्री कैन बी आल्सो फॉर्मुलेटेड इनटू आर्ट, मगर उसका जो आपका डिस्कोर्सल है, उसको जो आपका डिपिक्शन है, दैट शुड बी इन रिलेशन. तो जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स को म्यूजिक के साथ में कर सकते हैं, जैसे स्कूल्स में बच्चों को हम दिखाते हैं. सो इट इज सिंपली द फैक्ट कि हम उसको किस प्रकार से जोड़ते हैं, वो कितना ऑफिशियली कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. दैट इज इन रिलेशन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ the discipline approach, which considers the process of these ideas, the information, the methods, the tools, और ये जो अलग अलग प्रकार हैं, they are connected, they are synthesized, they are blended together. और जब हम इसकी बात करते हैं कि जनरल अप्रोच किस तरीके से हम लेते हैं, तो वी आर अगेन ब्रिंगिंग इट टू द यू कैन से एस्पेक्ट्स वेयर इट इज मेकिंग इट क्लियर, कि हम उसको क्लियर डिपिक्शन दिखाते हुए ये बताते हैं कि हम इसको कैसे सामने लाएंगे. कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो उसको लिंक करने के दौरान हमें उतना अच्छे से नहीं शो कर पाती हैं, बट इट डज नॉट मीन कि आप हम एज अ टीचर यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई, यू आर नॉट गोइंग टू शो डिफरेंट मोड्स. तो being a teacher is a very difficult task, believe me. You have to constantly be on your toes कि आप कितना बेहतर, कितना अच्छा समझा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, और कैसे आप उनको डिपिक्शन कर सकते हैं. Now this is in relation to the aspects where we find the, you can say, show and make it more clear. और बच्चे कई बार उन चीज़ों को बेहतर समझने लगते हैं जब हम उनको दो चीज़ों को रिलेट करते हैं, और रिलेशन से साथ में क्या होता है कि द लर्निंग बिकम्स मच मोर fruitful, much more long acting, and it is retainable. तो उनको हम generalize या generalistic approach के साथ में लेके चलते हैं. This generalistic approach can be very fruitful, can be very up to mark, and it can be retained for a longer period of time. तो हम इसके बाद में एक जिस नई चीज के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, that is the characteristics, as you say, of the interdisciplinary learning. Now interdisciplinary learning, जैसे कि आप सब जानते हैं, it is draws more than one discipline. मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले क्राइटेरिया है वो जो है एक से ज्यादा भिन्न डिसिप्लिन्स को ले जाता है. एक को हम नहीं डील करते, हम इसको डील करते हैं मोर देन वन. एक से ज्यादा, एक से भिन्न होने पर जब हम सिंगल डिसिप्लिन को डील करते हैं, दैट इज इन रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर अनुशासन से हम डील कर रहे हैं, दो आपस में लिंक्ड है. सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल relating to more than one discipline. Secondly, it has a definite focus which is beyond the sphere of a single discipline, जो एक से अधिक पे है. Then interdisciplinary learning is also pragmatic in its approach, meaning that it should be promote new understanding, new solution about the issues to be investigated. Now in this case what happens, ये जो आपकी जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच को लेके चलती है. प्रैग्मेटिक अप्रोच वो होती है जो आज के समय की है, जो उपयुक्त है, जो चेंजेस को अकर करने देती है, जिसमें परिवर्तन आ सकते हैं, परिवर्तनशील हैं. और ये अप्रोचेस जो हैं ये एक नया अर्थ, नई मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग इज न्यू, द लेवल ऑफ नॉलेज इज न्यू, एंड द सोल्यूशन दैट इट कम्स टू इज ऑल्सो न्यू. तो इस इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को हम सामने लाते हैं. नाउ अगर हम बात करते हैं कि ये कॉग्निटिवली कैसे इसको हम इसमें कैसे अकर कराते हैं या इसमें क्या चेंजेस लाते हैं, तो देयर आर 4 कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट इट हैज बीन टॉक्ड अबाउट, व्हिच इज पर्टेनिंग टू, यू कैन से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स. और इसमें हम कहते हैं कि इसको
कैसे फोस्टर करेंगे, कैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की लर्निंग पे हम ध्यान देंगे। और इस ध्यान देने की बात जहां तक आती है, इसमें लर्निंग बदल जाती है। द 4 कॉग्निटिव एबिलिटीज फोस्टर्ड बाय इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की हम जब बात कर रहे हैं, सो द पर्सपेक्टिव दैट इज टेकिंग टेक्निक्स, जो पर्सपेक्टिव टेकिंग टेक्निक्स है, दैट इज, इट मीन्स दैट दिस कैपेसिटी to understand very simple multiple viewpoints means on a, you can say, ये बहुत अलग अलग भिन्न प्रकार के multiple views होते हैं, point views होते हैं, जिसमें कि improvement की आवश्यकता होती है। और इनकी जो इम्प्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं कि वो इम्प्रूवमेंट कैसे अकर करता है, इट इज सिंपली बाय, यू कैन से, द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। बहुत सारे व्यूज होते हैं, कई सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कई सारे चेंजेस अकर करते हैं, उनमें से सबसे अच्छा कौन सा टेक्निक रहेगा, सबसे बेहतर क्या रहेगा, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। सो द टॉपिक इज नेचुरली हेल्प टू बी इम्प्रूव्ड एंड द स्टूडेंट्स डेवलप appreciation of the differences between disciplines। जो भिन्न प्रकार के अंतर हैं, उन अंतर को समझने के लिए जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको कैसे समझा जाए, उनके अप्रोचेस को कैसे लिया जाए, दैट इज इन रिलेशन टू द डिसिप्लिन। Now, जहां तक डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल नॉलेज की बात आती है, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज। किस प्रकार से स्ट्रक्चर, ये तो पर्सपेक्टिव टेकिंग टेक्निक की बात हो गई। अब दूसरी बात आती है कि जो स्ट्रक्चरल नॉलेज है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे रिक्वायर करती है, कैसे उसमें अंतर लाती है, कैसे प्रोसीजरल चेंज आते हैं, और ये चेंजेस अकर करते हैं भिन्न प्रकार से। ये जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है, इसमें डिक्लेयर करा जाता है, पहले से ज्ञान पता होता है और उसको प्रॉब्लम को रिलेट किया जाता है टू द प्रोसीजरल नॉलेज। जो नॉलेज जिस प्रकार से प्रोसीड करती है, आगे बढ़ती है, उसमें चेंजेस अकर किए जाते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रकार के जो हम इंसाइट की बात करते हैं, दैट इज इन रिलेशन टू द, यू कैन से, the various aspects of integration of conflicting insights। ये integration of conflicting insights means कि हम जब जो अलग अलग प्रकार की इंसाइट्स हैं, जो एक दूसरे से भिन्न होते हुए इतनी भिन्न हैं कि वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, दूसरे की विपरीतार्थक हैं, दूसरे से बिल्कुल ज्यादा जुदा हैं, तो उनमें इंटीग्रेशन लाना, उनमें समानता लाना, उनमें अंडरस्टैंडिंग लेवल लाना। तो वैरायटी ऑफ आइडियाज होते हैं, एंड दीज वैरायटी ऑफ आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स आर इनकॉर्पोरेटेड, यू कैन से, and these are in the various forms of discipline which are incorporated due to interdisciplinary approach rather than the use of approaches from single discipline। तो केवल एक प्रकार के अनुशासन की नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के they are encouraged to look out for alternatives from different disciplines, और इसी में hence you can say the insights are very enriched। और जब enrich इसलिए कहा जाता है कि जिस भी चीज में जहाँ पे इतनी भिन्नता हो, जहाँ पे इतने डिफरेंसेस हो, उसमें जब हम चेंजेस लाएंगे तो और उससे बहुत कुछ फायदा होगा, तो नेचुरल सी बात है कि इट इज अ वेरी एनरिच्ड काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। सो यू कैन से the variety of ideas from different disciplines are incorporated due to interdisciplinary approach rather than using of approach from a single discipline and interdisciplinary, you can say। The students are encouraged to look out for alternatives from different disciplines, and hence the insights are enriched, right? Now, ये जो insights are encouraged are they are how they are relating to each other, how they are required to bring about changes, how they are supposed to bring most benefit, सबसे ज्यादा fruitful होना, किस प्रकार से इतना fruitful हो कि वो enrich कर सकें experience में, learning ability में, and this is what they have talked about। So we come to the aspect of interdisciplinary understanding। ये हो गया conflicting insights का। Now we come to the interdisciplinary understanding। ये it increases and hence the holistic thinking अगर जब आप बहुत अलग अलग जुदा तरह की डिसिप्लिन्स से रिलेट करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं, तो नेचुरली जो अंडरस्टैंडिंग है
वो इंक्रीज करती है, एंड हेंस द होलिस्टिक थिंकिंग विल अकर. इट प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ये जो क्रिएटिविटी या क्रिटिकल सिस्टम की बात है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात है, इसमें बहुत सारे चेंजेस अकर करते हैं. और ये चेंजेस कैसे करते हैं या इनमें क्या बदलाव आता है, किस प्रकार से हम बदलाव लाते हैं, इसकी बात सिंपल सी ये है कि ये बदलाव बहुत ज्यादा एनरिच करने में सक्षम होता है, बहुत सारे चेंजेस अकर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका लाता है. ये क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, आजकल की शिक्षा का इस प्रकार का सिस्टम है कि इट इज फ्रूटफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस. और ये चेंजेस इस प्रकार से आते हैं कि ये अकर कराते हैं the imagination, the ability, the critical thinking, and also the you can say aspects of learning. तो ये जो skills हैं, ये जो abilities हैं, ये जो synthesis evaluation अकर करता है, ये जो मूल्यांकन है, इसको analyze करना, systematize करना, और see everything relating to creativity as well as critical thinking, then system thinking, इवैल्यूएशन. ये इसमें आप देखते हैं कि ये एक आर्ट और ये एक साइंस दोनों का ही रूप है. इसमें क्रिएटिविटी भी है, इमेजिनेशन भी है, आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, आपके सिस्टम ऑफ लर्निंग में परिवर्तन लाता है, लेकिन सिस्टमैटिक रहता है और उसमें सिंथेसिस करने में सक्षम होता है. सो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स दैट वी कम अपॉन. देन वी कम टू द मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग. ये मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग क्या है? दिस मल्टीडिसिप्लिनरी ना, इसके पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगी रिलेटिंग टू द इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, जिसमें कि एक डेफिनेशन दी है शूमेकर के अकॉर्डिंग. एन इंटीग्रेटेड करिकुलम इज एन एजुकेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इट कट्स across subject lines, bringing together various aspects of curriculum into meaningful association. And according to the Dictionary of Education, interdisciplinary curriculum is defined as a curriculum organization which cuts across subject matter and also limits to the focus upon comprehensive life problems or broad-based areas of such problem. तो इसमें अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम की बात करते हैं, उसमें बहुत प्रकार के यू कैन से देयर आर बेनिफिट्स अबाउट इट आल्सो. So but coming across the multidisciplinary approach, you can say multidisciplinary approach here relating to the learning part refers to the placing side by side of insights from two or more disciplines. दो से अधिक disciplines. Here the different disciplines help to develop a detailed understanding of the topic being studied. ये अलग अलग प्रकार के जिन चीजों की बात करती हैं, that is relating to different aspects. ये these disciplines however make separate contributions like interdisciplinary learning where an interdependent relations is also emphasized. ये बात समझने वाली है कि इसमें किस प्रकार से हम चेंजेस को लाएंगे. हम कैसे कहते हैं कि ये चेंजेस अकर कर रहे हैं. नाउ होता क्या है कि जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में केवल दो नहीं, दो से अधिक भी डिसिप्लिनरी हो सकते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं एंड विच ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन देम. और ये चेंजेस कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इंटरडिसिप्लिनरी एक्ट पे, interdependent relations पे, और no integration between these discipline is expected as a multidisciplinary approach. आप इसमें अगर बात करें कि बहुत प्रकार के भिन्न चेंजेस अकर कर रहे हैं, they are taking place, so they are just simply taking place in the form of this discipline, मगर इसमें चेंजेस अकर करने के reasons होते हैं. So we come to multidisciplinary learning. इसमें multidisciplinary approach जो है वो किस प्रकार की learning को अप्रोच को लाती है. So multidisciplinary approach in learning involves drawing appropriately from multiple disciplines to redefine problems outside of normal boundaries and reach the solutions based on a new understanding of complex situations. जैसा कि ये बताया गया है, कई प्रकार के चेंजेस हैं और इसमें लीड करते हैं. They are relating to
you can say different give definitions given by various other educationists जिन्होंने उन्होंने कहा है कि Langa and Yost have said that multidisciplinary instruction is an approach that thoughtfully incorporates and connects key concepts and skills from many disciplines into the presentation of a single unit. और गार्डनर ने 1995 में कहा था that the term multidisciplinary refers to combination of various disciplines as independent and separate components. तो इसकी definition के तहत अलग अलग तरह से describe किया गया था. Now अगर हम बात करते हैं characteristics of multidisciplinary learning, तो multidisciplinary learning gives the learners various other points, varied perspectives of the topic, and different disciplines contribute towards enriching learning. Learning enrich करने के लिए भिन्न प्रकार की reasons दिए गए हैं, and the content matter gathered from the you can say from different disciplines, और ये retain करते हैं from you can say distinct identities, जो अलग अलग identities हैं learner के लिए, उसको comprehensive बनाना, उसमें learning देना, and how to view the topics of the study. The multidisciplinary learning may not be integrative in its approach. Each discipline retains its own uniqueness in multidisciplinary learning. हर एक ऐसा नहीं है कि एक अगर हम अनेक की बात कर रहे हैं तो उसमें से कोई कम इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंस उतनी ही इक्वली सबकी है, सब अपने आप में यूनिक क्वालिटी रखते हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेहतर हैं, सबकी लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट है. So when we talk about interdisciplinary and multidisciplinary, it simply means that there are various aspects which we will be discussing about it. For example, interdisciplinary or multidisciplinary learning की अगर हम बात करते हैं तो in interdisciplinary learning the select, see I am doing this comparative for you so that you can understand the concept basically जो हमने अभी बताया अलग अलग independently. I just want you to understand कि इनके comparison में अगर हम बात करते हैं तो कहाँ stand करते हैं. So in interdisciplinary learning, the selection of a discipline and their insight is purposefully done and the end product clearly in view. Or interdisciplinary learning, there is a complete blend of thoughts and thus the disciplinary insights got from each discipline merges into each other. तो क्या होता है कि जब मल्टीडिसिप्लिनरी है तो उसमें डिसिप्लिन्स नीड नॉट बी चोजन पर्पसफुली, वो कोई पर्पसफुली नहीं लिया जाता है, वो भिन्न होती है, अलग होती है और उनको आपस में दे जस्ट हैपन. और इंटरडिसिप्लिनरी में इसका सिलेक्शन किया जाता है कि हम इनसाइट्स को ध्यान में रख के पर्पसफुली उसका एंड प्रोडक्ट देखते हुए द लर्निंग इज डन. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में लर्निंग में देयर इज अ कंप्लीट ब्लेंड ऑफ thoughts and thus the interdisciplinary sites got from each discipline merges into each other. और जो multidisciplinary learning है इसमें learning जो है contribution हर एक का अलग से purposefully नहीं किया गया लेकिन अपने आप में importance रखता है. And multidisciplinary learning you can say focuses less on collaboration. Less on collaboration से क्या मतलब है? It is focusing less on collaboration and interaction between discipline as compared to interdisciplinary learning. Interdisciplinary learning में collaboration अधिक होता है लेकिन multidisciplinary में focus जो है वो learning पर होता है, less on collaboration होता है. और interdisciplinary learning focuses on more collaboration and interactions between discipline. Multidisciplinary learning highlights learning of topics from diverse disciplines. तो ये डाइवर्स डिसिप्लिन्स की बात करी गई है, भिन्न प्रकार के अलग प्रकार के डिसिप्लिन की बात करी गई है कि किस प्रकार से हम लर्निंग को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाएंगे. सो वी कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी यू कैन से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड लर्निंग टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स. नाउ ये जो सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है या महत्ता है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच और लर्निंग से कैसे डिफरेंट होती है. सो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग promotes a broadened outlook with the learner becoming aware of the perspectives offered by more than one discipline. Interdisciplinary learning में ज़्यादा
importance multidisciplinary learning के दौरान होती है, जिसमें learning promotes a broadened outlook with the learner becoming aware of the perspectives offered. और interdisciplinary learning studies courses provide students with opportunities to understand the diverse perspectives of the links among discrete subjects, disciplines, and to develop their knowledge and skills. बिना किसी स्किल को उनकी क्या उसकी कुशलता है, क्या उसको हम किस प्रकार से स्कोप को लेंगे, किस प्रकार से डिसिप्लिन उसका इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे देखेंगे, हाउ विल द प्रॉब्लम्स बी सॉल्व्ड, हाउ कैन दे बी इंटीग्रेटेड टुगेदर, हाउ कैन दे ब्रिंग a relation of basic understanding between different subjects. ये एक उसकी आप कह सकते हैं it is relating to the importance and bringing aspects. ये जो narrow allegiance की बात करी जाती है, जहाँ पे एक discipline का role is to prevent the various aspects in considering only one discipline. जब हम केवल एक डिसिप्लिन को समझने की बात करते हैं तो वहीं पे लर्निंग की ज्यादा यू कैन से इट बिकम्स डिफरेंट. मगर जब हम एक से अधिक की बात करते हैं सो यू कैन से इट इज relating to these aspects. तो ये हो गई significance या understanding of various aspects, and then we talk about various you can say the learning aspect of how we will bring about the role of students in interdisciplinary and multidisciplinary learning. टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि वो समझ सके कि स्टूडेंट के लिए वो किस प्रकार से सबसे अधिक लाभात्मक रखना, फ्रूटफुल रखना और इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लर्निंग को लेते हुए साथ में बेहतर बना सके. सो दैट इज द रोल दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट, दे हैव सेड, दे हैव डिस्कस्ड. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट these aspects, these learning, so we can understand कि ये केवल डिस्कशन एक तरफा नहीं है. स्टूडेंट्स की को एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करना, सारे अनुशासन को समझने, सारे विषयों को समझ सके और आपस में इस प्रकार से लिंक करें कि उनके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ज्यादा केयरफुल अंडरस्टैंडिंग हो और इट शुड नॉट बी हार्मफुल. सो दिस इज व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट. So reading and reflection is an assured way of assisting multidisciplinary and interdisciplinary learning. अगर हम harmful उसको करेंगे, lopsided करेंगे, केवल एक तरफा रखेंगे तो understanding बेहतर नहीं हो पाएगी और हमें learning को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए we have to make an effort to see that it is not lopsided in personality. Now we come to the reading and reflecting, which is an assured way of assisting multidisciplinary and interdisciplinary learning. The extended learning places as individualistic and the historical events, you can say, the point where we talk about and say that this learning should be, if possible, we should be involving the planning, the development of interdisciplinary units. और जब हम इसमें monuments को, libraries को, laboratories को, science को, जब सारी चीजों को हम discuss करेंगे, लेकिन अगर हम उनको इंक्लूड नहीं करते, उनके ऊपर केवल हम थोपते हैं, बाहर से डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो टीचर का रोल एक ऑटोक्रेटिक हो जाता है, डेमोक्रेटिक नहीं रह जाता. वहीं पे स्टूडेंट्स का रोल हमारा उनके ऊपर फोर्सिबली लर्निंग कराने के लिए यदि हम विषय को जोर डालते हैं. सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट विद द रोल ऑफ द हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन प्रोमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग. जब हम इस रोल की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से लर्निंग को ज्यादा बेहतर बनाएं, तो द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू आवर माइंड इज द हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस. उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए जिससे कि वो बेहतर सब्जेक्ट्स चूज करने में, ऐसे विषय जो उनके लिए हितकारी हो. यदि आपने एक साइंस का टॉपिक, एक साइंस का विषय चूज करा दिया, एक आर्ट्स का करा दिया, तो उसका लिंकेज नहीं मिला. सपोजिंग सो मेनी स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर यू कैन से इकोनॉमिक्स just because it is an extra top subject, but if you are relating your earlier knowledge, earlier subjects to this subject, then only it shall be fruitful. So the individual departments of different disciplines must be strengthened, and this can be done by subscribing, you can say, different learning aspects. And here
the subjects can be interrelated. तो उनका क्या बेंट ऑफ माइंड है, उनकी क्या एक्सपीरियंस है, उनको कैसे ये टीचर को असिस्ट करना है ताकि वो अपने विषयों को चूज कर सके. सो द हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन मस्ट हेल्प द टीचर्स. टीचर्स के ऊपर जिम्मेदारी देने से केवल नहीं होगा, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल्स को, heads of institutions को, it is not there just to sit and rule. It is to see that their problems are being solved. So to prove that there is flexibility in the timetable, to see that the students are able to, so that the students are able to understand them, the institutions should see that the presentation is such that their learning is happening. The sessions are able to understand the concept of learning. ये सब तभी संभव है जब आपस में सामंजस्य होगा, जब आपस में लर्निंग होगी और उसी लर्निंग को आप आगे फ्रूटफुल करने में सहायक होंगे. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट एंड द पॉइंट व्हेन वी से कि ये किस प्रकार से बच्चों को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना सकते हैं. Now, while selecting the faculty heads of institutions should ensure that while they have in-depth knowledge and understanding of their own, they must also see कि ये केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये learning हो रही है और ये उनकी duty है, उनकी qualification है. That is not alone done. It must be seen that while selecting the faculties, their discipline, their vital organs, their multidisciplinary approach, उनका क्या रवैया है, उनकी क्या learning है, how it can be brought fruitful, how they can be proved to be successful. तो जो training sessions होंगे, they must be conducted, you can say time and again, जिससे कि उनकी learning में assist कर सकें, to plan, to see कि वो क्या कौन से लेवल पे कर रहे हैं, बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं हो पा रही है, किस तरीके से कराई जा सकती है. तो अगर हम उसको बेहतर नहीं करेंगे तो हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दे विल अंडरस्टैंड मोर. So when we talk about this, interdisciplinary units should be shared with all the faculties so that they can have opportunities to contribute their knowledge and skill. And they should provide flexibility in timetable so that the teachers can coordinate together to organize for interdisciplinary and multidisciplinary learning experiences. जब information technology का use होगा, जब बेहतर effort होगा, जब ज्यादा इंटरमिंगलिंग होगी, जब मैनेजमेंट का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, सबका रोल बेहतर होगा, तभी लर्निंग विल बी मोर अप्रोप्रिएट एज यू कैन से. सो वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास केवल डॉक्यूमेंट्स को होना, गुड प्रैक्टिस होना, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज नॉट सफिशिएंट. वो सारे अनुभव जो टीचर्स के पास में हैं, वो उन्हें स्टूडेंट्स को कैसे पास ऑन करने हैं, कैसे इन्वॉल्व करना है, स्टेक होल्डर्स उसके इंडस्ट्री के, जो मैनेजमेंट है, जो उसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके अंदर कैसे ट्रांजैक्ट करना है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी learning activities should be mingled in a very smooth manner and help the learners to get the views by those involved in real world applications of knowledge learned. और जब हम ये करेंगे तभी हमारी लर्निंग जो है वो ज्यादा, you can say, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. So healthy campus culture and with equal respect accorded to all disciplines and ethos of sharing and collaborating contribute to effective interdisciplinary, और वरना वो learning हम बेहतर नहीं कर पाते हैं. So you can say the interdisciplinary approach here, the teachers must design and implement curriculum based on the scope and sequence of the integrated disciplines and be flexible enough to form and revise the curriculum according to the students' needs. Teachers must choose appropriate topics that offer, you can say, more knowledge, more appropriate, indulge in interdisciplinary and multidisciplinary learning. By attending seminars and workshops of other disciplines, a teacher can widen his or her understanding of these disciplines. और जब ये effort करेंगे, तब हम बच्चों को सिखा सकते हैं. There are several designs for interdisciplinary teaching. Some of these involve integrating interdisciplinary, you can say, learning. These are the strategies which are being used to promote the interdisciplinary learning.
There are several designs. Some of these involve integrating interdisciplinary teaching in a single course, while others tie together a combination of different courses in a series, so that to promote buy-in, that is students, department and institutional buy-in for interdisciplinary teaching. और जब हम ये करेंगे तो आप कह सकते हैं the activities and the courses that have cross disciplinary will divide, और यही fruitful होगा आगे के लिए. So we have to make an effort कि हम किस प्रकार से इसकी learning करेंगे. ये जो स्ट्रैटेजीज प्रमोट करने के लिए बताई गई हैं, इसमें छोटे से लेवल पे बाय इन करने की बात करी है स्टूडेंट्स का, डिपार्टमेंट का, इंस्टीट्यूशन का, ताकि कोर्सेज में क्रॉस डिसिप्लिनरी एडजस्ट हो सके. देन वी कम टू स्टार्ट ऑफ स्मॉल. जो स्मॉल स्केल इम्प्लीमेंटेशन है वो लगता जरूर है कि ये स्मॉल स्केल इंटरप्रिटेशन एंड प्रैक्टिसेस दे कैन बी ऑफ ग्रेट वे टू स्टार्ट, यू कैन से, मगर इनमें कई सारे चेंजेस अकर करते हैं, और इन चेंजेस की बात करें तो it will refer to those changes being different aspects. जैसे कि for example you say कि हम किस प्रकार से ये स्मॉल स्केल की हम बात करें. स्मॉल स्केल चेंजेस से इंक्लूड करता है मेकिंग कनेक्शंस विद फैकल्टी फ्रॉम डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री एंड द कॉमन मैन. तो जो इनफॉर्मल टॉक्स हैं, जो लर्निंग विद वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, यू कैन से, इसमें किस प्रकार से चेंजेस अकर करेंगे. जो कम्युनिटी के साथ, जो समाज के साथ, कॉमन मैन के साथ, जो डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री और फैकल्टी के साथ में स्मॉल स्केल चेंजेस हैं, दे कैन बी कनेक्टेड टू योर टीचिंग इन द डेली कोर्स ऑफ लाइफ. और ये इनवाइट करना गेस्ट स्पीकर्स को, प्रेजेंट करना, एक को सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करना, वो गेस्ट स्पीकर कैन बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक or to some other topic which is related to that topic. And in this process, जो learning topic है from the outside of your own expertise at the level of teachers can be providing guest lectures to speak, and that will help their students to learn much more. So जो partners हैं with faculty from other departments also, they can be moved towards it. और इसमें partners which are moving towards, you can say, faculty and departments, and making use of pedagogies that lend themselves to interdisciplinary approaches, and the local environment, the campus, the teaching systems that are taking place, that are occurring day-to-day basis. तो उसके लिए भी changes की बात करी गई है. So now when we come to different aspects and discuss about the team teaching, या team teaching का concept जो आता है जिसमें कई सारे teachers मिलकर एक विषय को पढ़ाते हैं, this is relating to also to the topic जिसमें कि कहते हैं कि it is sort of you can say integrating multiple perspectives, hypothesis and opinion. So the team teachers can also serve as role models to demonstrate effective interdisciplinary and cooperative in the tackling of a problem or a solution. So I hope you have followed the concept of interdisciplinary and multidisciplinary, and the major drawback you can say in interdisciplinary approach is that the students are able to gain knowledge through a particular subject only, and they have difficulty in understanding conceptual facts because of having various mixed subjects. They have certain difficulty in understanding too many subjects at a time, or iski understanding mein complexity of subjects also occurs, and the teachers feel difficulty at times because they are not trained enough for that purpose, and the teachers are unable to use teaching subjects and teaching aids. लेकिन जहां तक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात है, इसमें जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो उससे ज्यादा वो बेनिफिट्स महसूस करते हैं, एंड दैट इज यू कैन से लर्निंग या पैरेलल बेस्ड या टीचिंग सर्विसेज व्हिच आर थीम बेस्ड. एंड सो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स, और जो कि अप्रोचेस हैं इंटरडिसिप्लिनरी को लेकर के. आई होप दैट यू हैव फॉलोड द कंसेप्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस and the learning teaching process, the requirement of these two disciplines जो इसमें concept में हम लोग के आता है. So in case you do find that there is any problem, you can refer to the slide share which I am going to place on this Google, and hope that you will be able to see this. So thank you students. I hope you have followed and understood this class. Thank you so much. And I hope you will see, read and understand the concept between the two.
Thank you, students. Thank you all.